Hello friends, welcome to Codebase, and this is the fourth video of video series coding preparation for placement. And in this video we will see coding caution and some MCQ type question. So let's start now. So friends, in the last video we have completed 11th coding question, and in this video we will start from the coding question number 12. So in the coding question number 12 we have given a maximum of 100 digit number as input. Find the difference between the sum of odd and even place digits. मीन्स हमको क्या है, एक नंबर दिया हुआ है जिसमें मैक्सिमम 100 डिजिट हो सकती हैं, एंड वी हैव टू टेक दैट नंबर एज अ इनपुट, एंड वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ odd and even place digit. So let's see the case number first. Suppose we have an input is 4, 5, 6, 7, and this is the 4 digit number, and in this number the odd place digit is 4 and 6. 4 is a place of 1 and 6 is a place of 3. So this is the odd place digit, and even place digit is 5 and 7. So what we have to do, we have to find the sum of, means sum of odd place digit, means 4 plus 6 equals to 10, and even place digit, so 5 plus 7 means 12. So 12 minus 10, तो हमको करना है कि सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेस डिजिट निकालना है, और उसका क्या करना है, फिर उसका डिफरेंस करना है. ऑड प्लेस डिजिट का हमने सम किया तो क्या मिल रहा है हमको 4 प्लस 6 10, एंड इवन प्लेस डिजिट का हमने सम किया तो क्या मिल रहा है हमको 5 प्लस 7 इज 12, एंड 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2. तो यह हमारा आउटपुट है. तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में, odd positions are 4 and 6. They are position 1 and 3. Both have sum 10, and similarly 5 and 7 are at position 2 and 4 with sum 12. Thus the difference of 12 minus 10 equals to 2. So this is case first, and let's see the case case 2. So in case 2 we have an input of this number. You can count how many digits in this number: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. So 13 digit number. So same procedure we will apply in this in this number. So we will add all the odd place digits, and after that we will add all the even place digit, and we will find the difference between them. So we will get the output is 1. So this is the question. Let's see the code for this question. So this is the code for the question. First of all, we will input that number in the variable n, and we will input that number as an integer type. That's why we taking this number from the user int of input, and we give the message is enter maximum of 100 digit number. Means user should enter only the maximum of 100 digit number. Okay,
After that we took to empty list odd एंड इवन, दो लिस्ट ली हमने, कौन कौन सी, एक इवन नाम से, एक ऑड नाम से और दूसरा इवन नाम से। और उसके बाद एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है पॉज और उसको इनिशियली कर दिया हमने क्या 1। मीन्स वी हैव टू लिस्ट odd and even and both lists are empty and one variable that will be start from position 1. Now what we will do, we will traverse this number. So इस नंबर से हमको एक डिजिट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल what we will do, we will convert this number in the form of string। और अब हम इस स्ट्रिंग में क्या लगाएंगे, for loop। So for I in string of n। अब क्या किया हमने, ये i जो है इस n के एक डिजिट को एक्सेस करेगा क्योंकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो क्या करेंगे हम, जैसे ही इसने फर्स्ट डिजिट को कन्वर्ट किया, जैसे इसने फर्स्ट डिजिट को एक्सेस किया, तो जो फर्स्ट डिजिट है वो कौन से पोजीशन में है, फर्स्ट पोजीशन में। तो यहाँ पे पोजीशन की जो वैल्यू है इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो जैसे फर्स्ट पोजीशन है उसको हम क्या करेंगे, मॉड करेंगे 2 से, इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये तो फर्स्ट डिजिट है, ये इवन नहीं है, क्या होगा, ऑड होगा। तो वो किस में चला जाएगा, एल्स में। तो जो फर्स्ट डिजिट आ रही है आई, फर्स्ट डिजिट मिल रही है आई, वो किस लिस्ट में अपेंड हो जाएगा, ऑड लिस्ट में। देखो हमने किया हुआ यहाँ पे ऑड डेट अपेंड, और उसको किस में अपेंड करा, देखो जो आई में जो वैल्यू मिल रही है वो हमको स्ट्रिंग में मिल रही है और हम अपेंड किस में करा रहे हैं, इंट में, इंट ऑफ आई। फिर सेकेंड डिजिट मिलेगी, सेकेंड डिजिट मिलेगी। तो फिर यहाँ पे हमने पोजीशन की वैल्यू भी क्या की है, इंक्रीमेंट की है। तो पोजीशन की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब वो 2 है तो मतलब क्या है, इवन है। तो सेकेंड डिजिट जो है वो किस में अपेंड हो जाएगी, इवन लिस्ट में। फिर उसके बाद फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा और आई में, और फिर आई की नेक्स्ट वैल्यू, आई की जो भी नेक्स्ट वैल्यू होगी वो थर्ड डिजिट होगी। तो पोजीशन की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी। फिर पोजीशन की वैल्यू क्या होगी 3। तो फिर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और जो थर्ड डिजिट है वो किस में अपेंड हो जाएगा, ऑड लिस्ट में। फिर पोजीशन की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वो क्या होगी 4। और जो फोर्थ डिजिट मिल रही है हमको वो, क्योंकि फोर्थ पोजीशन है इसलिए क्या होगी, इवन है। तो फोर्थ डिजिट किस में स्टोर हो जाएगी, इवन में। तो ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, जो भी ऑड पोजीशन वाली डिजिट है वो हम किस में अपेंड करा देंगे, ऑड लिस्ट में। और जो इवन पोजीशन वाली डिजिट है वो किस में स्टोर करा देंगे, इवन लिस्ट में। What we will do after that, we will find the sum of odd list number। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास odd लिस्ट में नंबर है उनको सम करेंगे और इवन लिस्ट में जो भी नंबर है उनको सम करेंगे और उनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। और वो डिफरेंस क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा, मतलब क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और उसको लास्ट में क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे। सो दिस इज द ओवरऑल कोडिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. Let's see run the code and we will see the output. So we will take the same question that is given in a, we will take the same input that is given in a question. So 4 5 6 7 enter. So answer is, output is 2. You can see that output is 2. Next we will input another number. Again we will run this program and the input number is this and we will get the output is 1. So this is the code of question number 12. Okay, so now we will see some MCQ type question next in this video. So we have completed I think 12 coding question and we will do more coding question in the next video, but I thought we have to do preparation also, MCQ type question also. Okay, so we will in this video we will do some MCQ type question. So let's see
the MCQ type question. So this is the MCQ type question number 1. So here we have to find the output. What is the output of the following program? So here a class A, class name is A, and its constructor is def int, and this constructor is taking a one variable A, and self is a default parameter, and self dot num equals to A. Then inside this class A we have another method def mul underscore 2, and it is taking default parameter self, and self dot num multiply equals to 2. Then we have another class B, and this class is inheriting the class A. This is the object oriented code of Python programming. Okay, so this class B is inheriting the class A, and its constructor is def init self as a default parameter comma A, and in this child class we are also calling the base class constructor. See, when you are inheriting the base class from the child class, so the child class constructor is override the base class constructor. तो यदि हमको बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं. हम क्लास नेम यूज़ करेंगे डॉट इनिट और फिर इसके सेल्फ कॉमा और हम उसे वेरिएबल पास कर सकते हैं. तो ये तो फर्स्ट मेथड हो गई कि जब आप बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं. सेकेंड मेथड भी होती है सुपर मेथड. तो यू कैन यूज सुपर मेथड बाय कॉलिंग फॉर कॉलिंग दी बेस क्लास कंस्ट्रक्टर. तो हमने क्या किया, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को भी यहाँ पे कॉल किया हुआ है. फिर इस ड्राइव क्लास में एक और मेथड दी हुई है डेफ mul3, एंड इट्स डिफॉल्ट पैरामीटर इज सेल्फ, एंड सेल्फ इनटू num asterisk multiplication equals to 3. So this coding question will be start from where we are creating the object. तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट, सबसे पहले हम जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से. सबसे पहले हम किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बी क्या है, बी हमारे पास चाइल्ड क्लास है. तो चलते हैं बी पे. बी हमारे पास क्लास है चाइल्ड क्लास, जिसका हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट. सीधे ये ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड क्लास का. तो जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो चाइल्ड क्लास का क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर. तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है तो इस सेल्फ को काट के अब क्या आ जाएगा यहाँ पे ओबीजे, और इस 4 की जगह ये 4 किसके प्लेस पे जाएगा, ए की जगह पे. ओके, तो सेल्फ क्या होता है, सेल्फ इज अ डिफॉल्ट पैरामीटर, इट इज अ रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो जैसे ही हम एक रेफरेंस, सेल्फ कहते हैं रेफरेंस होता है ऑब्जेक्ट का. तो जैसे ही हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सेल्फ की जगह पर हम सेल्फ की जगह पर क्या आ जाता है, उस क्लास का क्रिएट किया हुआ ऑब्जेक्ट. इसलिए हमने क्या किया, सेल्फ को काट के क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट, एंड जो वेरिएबल पास हुआ ए की जगह क्या रख दिया हमने 4. अब क्या हुआ, इसके बाद क्या किया, इसके बाद क्या किया है, हमने इस चाइल्ड क्लास में बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर कॉल किया. बेस क्लास क्या है हमारी, बेस क्लास है हमारी ए, और उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया हमने कैसे, डॉट इनिट. ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, सेल्फ को काट के क्या आ जाएगा, ओबीजे. ओके, एंड ए को काट के क्या आ जाएगा, 4. अब जैसे हमने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है तो क्या होगा, हम सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, बेस क्लास पे. तो चलते हैं बेस क्लास पे.
बेस क्लास पे जाओ। तो बेस क्लास में क्या होगा, यहाँ पर बेस क्लास में क्या होगा, जैसे ही हमने बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो यहाँ पे भी सेल्फ की जगह क्या हो जाएगा, ओबीजे, ए की जगह क्या हो जाएगा 4, एंड सेल्फ डॉट नम की वैल्यू क्या है 4, ए की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। ओके, सो जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका, चाइल्ड क्लास का, तो हमको कुछ ये डिफरेंस देखने को मिले। ओके, कि क्या डिफरेंस देखने को मिले, हमको डिफरेंस देखने को मिले कि जो ओबीजे है वो ऑब्जेक्ट है हमारा, एंड ए की वैल्यू जो है वो कितनी हो चुकी है 4, सभी जगह, चाइल्ड क्लास में भी एंड बेस क्लास में भी। नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट के बाद कॉल कर लिया है किसको, प्रिंट। अब किसको प्रिंट कर दिया, ऑब्जेक्ट डॉट नम। तो ऑब्जेक्ट डॉट नम की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, ऑब्जेक्ट डॉट नम की वैल्यू हमको मिल रही है 4। यहाँ पे हमने देखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नम जो बेस क्लास में हमने देखा है, ऑब्जेक्ट डॉट नम की वैल्यू क्या मिल रही थी हमको यहाँ पर 4। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट नम की वैल्यू क्या मिली हमको, इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, इस जगह पे क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा 4। तो फर्स्ट जो वैल्यू वो क्या मिलेगी हमको 4। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फिर इसके बाद क्या किया है, नेक्स्ट क्या किया है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट, तो फर्स्ट वैल्यू मिल गई हमको 4। तो इसको हम सेपरेट करके रख देते हैं, इसको रिमूव करते हैं यहाँ पे। तो एक वैल्यू मिल चुकी है हमको क्या 4, एक वैल्यू मिल गई हमको 4। फिर उसके बाद क्या किया है, फिर कॉल कर दिया है क्या, ऑब्जेक्ट डॉट मल स्लैश 2 अंडरस्कोर 2। और उसमें क्या किया है हमने, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट कॉल, ये जो फंक्शन है वो कॉल किया mul_2, और फिर इसका फिर प्रिंट कराया ऑब्जेक्ट डॉट नम। तो हम चलते हैं फंक्शन पे, कहाँ बना हुआ है जी ये फंक्शन। तो ये बना है फंक्शन कहाँ पे, बेस क्लास में। तो बेस क्लास में क्या है, ये बना हुआ है फंक्शन सेल्फ mul_2। और यहाँ पे क्या है, नम की वैल्यू क्या हो चुकी है 4, और 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ डॉट नम इंटू इक्वल्स टू 2। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 8। और इसको प्रिंट कराना है हमको, नीचे दिया हुआ है क्योंकि प्रिंट कराना है हमको, यहाँ पे ये प्रिंट कराना है ऑब्जेक्ट डॉट नम। और फिर नेक्स्ट फंक्शन क्या कॉल किया है, ऑब्जेक्ट डॉट मल 3। तो मल mul_3, तो ये दिया है वो फंक्शन। ओके, ये फंक्शन दिया हुआ है। और इसमें क्या किया है, नम को जो लास्ट वैल्यू क्या हो गई थी नम की हमारी 8, और 8 को क्या किया है फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 है तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24। सो नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी हमको 24, और उसको क्या कर दिया प्रिंट करा दिया। तो हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, ऑप्शन क्या होगा ए 4824। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस कोड को हम रन करके भी देख सकते हैं। जैसे ये है हमारा MCQ नंबर 1, ये यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। अब इसको रन करते हैं हम, जैसे तो आउटपुट क्या मिल रहा है हमको 4824। So this is the MCQ number 1. Next see the MCQ question number 2. So MCQ number 2, what is the output of the below program? तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड दिया हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग में।
यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ह्यूमन क्लास है और इसमें इसका कंस्ट्रक्टर ये बना हुआ है। इसमें एक मेथड है गेट ह्यूमन नेम, एक और मेथड है दैट इज एम्प्लॉय। फिर इसके बाद क्या है, हमारे पास एक ड्राइव क्लास बनी हुई है आई बी एम्प्लॉय, और उसमें हमने इनहेरिट किया है ह्यूमन क्लास को। इसका भी कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया हुआ है, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। किस मेथड का यूज़ करके, सुपर मेथड का। सो आई टोल्ड यू ना फर्स्ट MCQ कि वी कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर ऑल्सो बाय यूजिंग द सुपर मेथड। इसमें भी दो और मेथड हैं, एक है इज एम्प्लॉय एंड वन मोर मेथड इज दैट गेट एम्प्लॉय ID। ओके, एंड फिर हमने क्या किया है ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एम्प्लॉय, और सिंपल ये सारी मेथड्स को प्रिंट करा दिया। और ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है ABCD, इसमें से कौन सा आंसर है, तो इसको हम सीधा कोड से समझते हैं। सो लेट्स सी द MCQ कोड नंबर 2। यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर ये बेस क्लास हो गई ह्यूमन एंड ये है ड्राइव क्लास IB एम्प्लॉय, और ड्राइव क्लास में हमने ह्यूमन क्लास को इनहेरिट किया हुआ। अब कोड कहाँ से स्टार्ट होता है, कोड स्टार्ट होता है जहाँ से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम किसका क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्लॉय। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ड्राइव क्लास को। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कहाँ पे चले जाते हैं हम, सीधे आ जाते हैं किस पर, ड्राइव क्लास में IB एम्प्लॉय। नाउ वी created the object of drive class, सीधा इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। एम्प्लॉय इज अ कंस्ट्रक्टर, एम्प्लॉय इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास IB एम्प्लॉय। तो सेल्फ को काट के सेल्फ के प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेल्फ के प्लेस पे क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय। ओके, सेल्फ के प्लेस पे क्या जाएगा यहाँ पर, एम्प्लॉय। नेम की जगह क्या मिल जाएगा हमको, नेम की जगह मिल जाएगा मिस्टर एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय ID क्या आ जाएगी हमारे पास, IB007। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमको क्या क्या मिला हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ, सेल्फ की जगह हमको क्या मिल गया है, एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय एंड नेम मिल गया हमको। नेम जो है क्या मिल चुका है, मिस्टर एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय ID क्या मिल गई है, एम्प्लॉय ID मिल गई है IB। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड कि हमको ये 3 वैल्यू मिल गई। सेल्फ की जगह क्या मिला है हमको, एम्प्लॉय। सेल्फ की जगह क्या मिला है, एम्प्लॉय। नेम की जगह क्या मिल गया है हमको, मिस्टर एम्प्लॉय, एंड एम्प्लॉय ID की जगह क्या मिला है हमको, IB007। सो लेट्स इरेज इट। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, अब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ये चेंजेस मिले हमको कि सेल्फ की जगह ये आ गया, नेम की जगह मिस्टर एम्प्लॉय, एंड एम्प्लॉय ID की जगह IB007। अब सुपर मेथड का यूज़ करके हमने क्या कॉल किया है, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर। बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया और वहाँ पे भी हमने क्या पास कर दिया, नेम, और नेम की वैल्यू क्या है, मिस्टर एम्प्लॉय। चलते हैं बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर पर चलते हैं। यहाँ पे नेम की जगह क्या हो जाएगा, मिस्टर एम्प्लॉय, और सेल्फ डॉट ह्यूमन नेम की जगह क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट ह्यूमन नेम इज़ अ वेरिएबल, उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, नेम की वैल्यू, नेम इज़ अ मिस्टर एम्प्लॉय। ओके, नाउ नेक्स्ट अब क्या हुआ है, ये तो हो गया क्योंकि हमने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया था तो इतने चेंजेस हमको देखने के मिल गए। नाउ नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ये उसमें चेंज, बेस क्लास पहुँच गया। फिर उसके बाद क्या हुआ,
एक और वेरिएबल बना हुआ है सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आई डी। एम्प्लॉय आई डी क्या आ जाएगी हमारे पास IB007। तो एक लाइन को एग्जीक्यूट करने से जो हमारा चाइल्ड क्लास है उसका कंस्ट्रक्ट उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से हमको ये चेंजेस देखने को मिले कि नेम की वैल्यू हो गई हर जगह क्या मिस्टर एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू क्या हो चुकी है 1IB007। नेक्स्ट क्या कॉल किया है, सबसे पहले क्या किया है एम्प्लॉय डॉट गेट ह्यूमन नेम। अब एम्प्लॉय डॉट गेट ह्यूमन नेम, तो गेट ह्यूमन नेम जो है वो मेथड कहाँ बनी हुई है देख लेते हैं। तो गेट ह्यूमन नेम मेथड बनी हुई है बेस क्लास में। तो क्योंकि हमने बेस क्लास को ड्राइव क्लास में इनहेरिट किया है तो हम बेस क्लास ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर से बेस क्लास की मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मेथड को कॉल किया तो हमको क्या मिल रहा है रिटर्न में सेल्फ डॉट ह्यूमन नेम। ह्यूमन नेम की वैल्यू क्या चुकी है, जो नेम की वैल्यू क्या है मिस्टर एम्प्लॉय। सेल्फ डॉट रिटर्न में क्या मिला सेल्फ डॉट ह्यूमन नेम। तो फर्स्ट प्लेस पे क्या प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा मिस्टर एम्प्लॉय। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट से सेकेंड मेथड कॉल की है इज एम्प्लॉय। अब इज एम्प्लॉय मेथड जो है वो ड्राइव क्लास में भी है और इज एम्प्लॉय मेथड जो है वो बेस क्लास में भी है। लेकिन ये मेथड कौन सी कॉल होगी, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ। ऑब्जेक्ट किस क्लास का बना हुआ है, चाइल्ड क्लास। तो कौन सी मेथड कॉल होगी, कौन सी मेथड कॉल होगी, चाइल्ड क्लास की मेथड। और रिटर्न में क्या मिलेगा हमको, ट्रू। ओके, सो फर्स्ट क्लास में आ गया था फर्स्ट, यहाँ पे हमने गेट ह्यूमन नेम कॉल किया था तो यहाँ क्या प्रिंट हो गया था मिस्टर एम्प्लॉय, यहाँ प्रिंट हो जाएगा ट्रू। और फिर किसको कॉल किया है एम्प्लॉय डॉट गेट एम्प्लॉय आई डी। तो गेट एम्प्लॉय आई डी किस में है, ड्राइव क्लास में। सो ड्राइव क्लास में भी ड्राइव क्लास में ही मेथड है ये गेट एम्प्लॉय आई डी, बेस क्लास में नहीं है हमारे पास। सो ड्राइव क्लास में गेट एम्प्लॉय आई डी कॉल हुआ और यहाँ पे क्या हो जाएगा एम्प्लॉय आई डी, क्योंकि सेल्फ डॉट रिटर्न क्या मिला है एम्प्लॉय आई डी। तो एम्प्लॉय आई डी क्या मिलेगी हमको IB007। तो आउटपुट क्या मिलेगा मिस्टर एम्प्लॉय ट्रू एंड IB007। सो हम इस क्वेश्चन को रन करके देखते हैं। इसको पहले अरेंज कर देते हैं। सो लेट्स run this question। So this is the output Mr. Employee true and IB007। तो इससे क्या मिल रहा है हमको Mr. Employee true IB007। तो जो आउटपुट इज जो रिजल्ट है वो क्या होगा B होगा। So this is the code, this is the MCQ question number 2। So in this video we have discussed one coding question and one MCQ type question. In the next video we will see some more coding question or MCQ type question. So keep watching and keep prepared for your campus placement, and don't forget to like, subscribe and share my video। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।